Good afternoon, people. So, can I assume that all of us are writing prelims this year? Okay, how many of us are writing prelims this year? Good enough. So let's do one thing. For next 1.5 hours, let's make it the most productive hours. So that when you go back home, you don't have to do anything about the schemes which I'm discussing with you. Okay? What we have planned is, see, it's not about that the document cannot be studied by you. But the thing is, there is a time crunch and there is a feeling called FOMO. That if you don't prepare the document, there would be a psychological pressure, oh, I have left one document. So in order to address that feeling of FOMO and in order to ensure that you don't waste upon your time, we have come up with this fast track session. So we have 2 sessions, as you guys are aware. So today I and one more faculty is going to take the respective schemes of our areas. Now, how we are going to proceed, let's just have a brief idea. I'll give you the most important idea. Do you have that scheme document with you? Okay. So you just need to highlight the important stuff in the scheme which needs to be prepared. See, again, one disclaimer. I cannot say that whatever I'll teach, only that will come. No one can vouch for that as far as scheme is concerned. Second thing is, ho sakta hai, there is something else which is being asked. But at least the minimum possible thing that we can do is we can actually get through the document which is with us at present. Okay. Now, what happened was, there are few of the questions which have been asked in past. My concern is not for you to solve these questions. As of now, my concern is just see the trend in the question. These are PYQs. It says, what is the purpose of Vidyanjali Yojana? That means they are asking the purpose of the scheme. So, as far as the answer is concerned, you can go through the content. Okay? But what I'm trying to draw your attention is they are asking question on the purpose of the scheme. The second question that we had, what is, again a PYQ, what is the aim of Unnat Bharat Abhiyan? So again, they're asking question on purpose, they're asking question on aims. Next, who among the following can join National Pension System? That means questions are asked on beneficiaries. That who would be the beneficiary of the following scheme? So what we noticed, purpose, aim, beneficiary. What are the following objectives of National Nutrition Mission? That means questions are being asked on the objectives. With reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which of the following statements are true? And in such questions, see the first point. Now I'm not drawing your attention on the question, I am drawing the attention to the point. It is a flagship scheme of the Ministry of Labour and Employment. That means they are asking questions even on the ministry. So are you noticing the trend? Because if we understand the trend, we can actually streamline our preparation that this is the basic minimum ye padh ke jayenge. Ab iske beyond kuch pucha, to wo jane. Is this very clear? Okay. Next, with reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following options. So basically, they're also asking you salient features. So they're asking you features, they're asking you ministry, purpose, aim, objective, beneficiary. This is a standard way of asking the question. They might also ask you the question with respect to, yahan to direct hi sawal hai, Atal Innovation Mission kiska part hai? So again, they are asking the direct question. They might also ask you the question where they're asking about the nature. For example, which of the following statement is true with respect to the scheme? And then they are giving you 4 options. One of the option is, it is a centrally sponsored scheme.
It's a central sector scheme. So a brief idea is that UPSC is asking the questions on these lines. So if I'm looking at these questions of PYQs, we can able to conclude that if it is talking about the schemes, the things that I have to keep in mind is, one, हम chronology में चलते हैं. The scheme falls under which ministry? Second, we will talk about the nature of the scheme, whether it is centrally sponsored or it is central sector scheme, or it might have the combination that एक स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है लेकिन उसका कोई कंपोनेंट है जो सेंट्रल सेक्टर है. सो इट कैन बी इन दिस. देन वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज द ओवरऑल एम ऑफ द स्कीम, what are the specific objectives of the scheme, who are the beneficiaries of the scheme, and we can also talk about implementing agency. And I am making a star here. Some specific features, अगर कोई है तो, or there are some specific targets. We need to understand that for every scheme you don't have to run after all the content क्योंकि it would create a problem of infobesity, too much of content. Let's not do that. But at least अगर कोई बहुत specific feature है या कोई बहुत specific initiative है या कोई specific targets हैं, then it can be taken into consideration. Otherwise this would be more than enough. Now ये लग रहा होगा कि मैम इतना सारा पढ़ के तो ऐसे 5-5 मिनट भी नहीं लगेंगे और एक एक स्कीम होती चली जाएगी, क्योंकि ये तो सबसे आसान है करना. आपको वो खेल खेल में सब याद होता चला जाएगा. बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, आई नो यू गाइज आर अवेयर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज बेसिकली सेड they are funded partially by center. Some amount of contribution has to be made by the state, but it is implemented by state. ये just for the reference बता रही हूं. Centrally sponsored में क्या होता है? Funding is shared between center and state, but जो implementation mechanism होता है, that lies with the state. Usually centrally sponsored schemes are on the topics which belongs to state list. ठीक है. When we talk about central sector, it is completely funded by central government, and the implementing machinery is also of the central government. Usually it is made on the subjects which belongs to union list. ठीक है. Just for the reference, centrally sponsored was further divided in 3 categories. Core of the core scheme, core scheme, and optional scheme. Core of the core scheme, कोर स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम. रटने की जरूरत नहीं है, जितना भी बात कर रहे हैं बस रजिस्टर्ड करते चलो. कोर ऑफ द कोर स्कीम आइडली इस वक्त 6 हैं. फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल अब 4 स्कीम्स और आती हैं. लेट्स हैव अ लुक, आई जस्ट मेंशन इट फॉर यू. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, and then it is an umbrella scheme, और इसको 4 कैटेगरीज में बांट दो. फॉर SC, ST,
minorities and other backward communities. So total 6 schemes. 6 हैं इसलिए फिर भी याद की जा सकती हैं, बाकियों को याद करना उतना जरूरी नहीं है. वो जैसे स्पेसिफिक स्कीम्स पढ़ोगे तो याद करते जाना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर है. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? कोर स्कीम का क्राइटेरिया होता है फंड शेयरिंग इज 60:40 बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं तो फंडिंग पैटर्न वुड बी 90:10. ऑप्शनल स्कीम में फंडिंग पैटर्न इज 50:50. लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न है और हिमालयन स्टेट्स है तो दैट्स इट. ये बेसिक आइडिया है बिफोर वी आर स्टार्टिंग विद द स्कीम्स. Can we proceed? Okay. So now we'll take one by one each scheme and we'll discuss how it is supposed to be prepared. जो existing pattern कर रहा है, जो भी existing है, that will continue to be there. For example, MG नरेगा. तो MG नरेगा में जो लेबर कॉस्ट है वो 100% सेंटर देती है और जो मटेरियल कॉस्ट है वो सेंटर 75% देगी और स्टेट 25% देगा. ये एग्जिस्टिंग था, दिस विल कंटिन्यू. ठीक है. इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? नहीं. पूछो ना जूम कैसे. अब इसमें हंसने का क्या है, मेरे को कंटेंट पढ़ाने को बोला है, वो मैं ठीक से कर दूंगी. किसी को टीम से बुला देना ना. ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ट्राइबल्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. स्कीम का नाम क्या है? आदि आदर्श ग्राम योजना. आदर्श मतलब मॉडल, ग्राम यानी विलेज. तो एम तो क्लियर हो जाना चाहिए. सो एम इज कि villages has to be transformed into model villages. But ऐसे कैसे? This villages is basically consisting of tribal population. तो villages with significant tribal population has to be transformed into model villages. It's a centrally sponsored scheme with 100% grant from center. क्लियर है? बेनिफिशियरीज कौन होंगे? All states and UT with notified ST population. Within that, वो villages which has 50% of ST population and 500 ST persons. आप खुद देख रहे हो कितना आसान हो जाएगा पढ़ना. वेरी क्विकली वील रिवाइज. इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. सेंट्रल सेंटर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. 100% ग्रांट कौन दे रहा है? सेंटर दे रहा है. इसका एम क्या है कि जो भी विलेज में सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे मॉडल विलेज में आपको ट्रांसफॉर्म करना है. तो बेनिफिशियरी कौन होंगे? हर वो स्टेट और यूटी जिसमें नोटिफाइड एसटी पॉपुलेशन है, बट वो विलेजेस उन स्टेट और यूटीज में जिसमें 50% एसटी पॉपुलेशन है और कम से कम 500 एसटी पीपल हैं. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है. नाउ ओवरऑल
what would be the objective? Four-fold objective या three-fold में divide कर लेते हैं. First, village development plans maximize the benefits of existing schemes of state and center and developing infrastructure with respect to health, education, connectivity and livelihood. अगर हेडिंग्स बना के पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो अब बेसिक आइडिया, एम क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेक्टर है, बेनिफिशियरी कौन है, इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको याद रहेगा ये बेसिक चीजें? फिर मैंने आपको स्टार बना के बताया था कि कुछ स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए. चलो एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. एब्सोल्युटली. तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वुड बी द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इज इट मेकिंग सेंस? ठीक. क्या इसमें कोई स्पेशल प्रोविजंस हैं वेयर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन? सो देयर आर सम प्रोजेक्ट्स व्हिच वुड बी टेकन अप in order to create these model villages. So whether it is my Anganwadi centers, whether it is drinking water, whether it is sanitation, solid waste management, road connectivity, telecom connectivity. Did you get the point? So these are some of the projects which would be taken under this scheme. कहने का मतलब है कि एक्टिव रिकॉलिंग करके पढ़ोगे जल्दी याद होंगी चीजें. जब आप रिवाइज कर रहे हो बस आप ये हेडिंग्स याद रखना कि मुझे यही हेडिंग्स पढ़नी है, इसके अलावा जो कंटेंट दे रखा है वो आप छोड़ सकते हो. एक बार रीड भले ही कर लो, बट जब मैं एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या आपको याद रहना चाहिए, तो ये आपको याद रहना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट है, यू डोंट नीड टू फियर, बिकॉज प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने होगा. मेंस थोड़ी ना है जो सोच के लिखना है. प्रीलिम्स में आंसर आपके सामने है. अगर एक बार भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, यू विल बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्कीम? ठीक है. हाँ हाँ, एंड ठीक है. कैन वी मूव फर्दर? Next, we'll take up the scheme in news, that is Mission Shakti, Ministry of Women and Child Development. So give the heading Ministry of Women and Child Development. What I am doing, I'll let you know. ऐसा नहीं है कि स्कीम कंटेंट में नहीं है. जो बड़ी स्कीम्स है ना, जो 3-4 पेजेस में लिखी हुई हैं, मैं उनको बस पढ़ने का तरीका सिखा रही हूँ, जिससे क्या होगा, याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा. So the scheme that we have is Mission Shakti. It is an integrated program for empowerment of women. Focus was that there should be women-led development. And in order to ensure women-led development, they were focusing on issues which were affecting women in life cycle continuum. Over their life cycle, whatever are the issues which were addressing or affecting women. Why? Because overall objective was to ensure women-led development. So they came up that there are 3 major aspects which needs to be addressed. You have safety, you have security,
and you have empowerment. For safety and security, they came up with a sub-scheme which is known as Sambal. It's a sub-scheme under Mission Shakti. And with respect to empowerment, they came up with a scheme known as Samarthya. अभी सिर्फ हम स्कीम का स्ट्रक्चर बता रही हूं जिससे आपको याद रहे, ठीक है? So there are two sub-schemes. ये याद रखिएगा, ये क्या है? ब्रॉड सब स्कीम्स हैं अंडर मिशन शक्ति. एक है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, दूसरी है एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है? संबल जो है ये 100% फंडेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सामर्थ्य जो है इसमें फंडिंग शेयर्ड है. अगर हमें याद रखना है तो संबल के अंडर इनिशिएटिव सच एज वन स्टॉप सेंटर, इनिशिएटिव सच एज विमेन हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड नारी अदालत. These are the initiatives which will be subsumed under Sambal. And under Samarthya, we have Ujjwala Homes, Swadhar Greh, which together is known as Sakhi Sadan. नाम दिया इसको. Then we have Working Women Hostel, जिसको नाम दिया है सखी निवास. Then we have creche facility, which is known as Palana. Then we have home for widows. We also have hub for empowerment of women, जिसका एक component है gender budgeting. There is a provision for gap funding, and there is a provision for Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana. But the highlight would be महिला पुलिस वॉलंटियर एंड महिला शक्ति केंद्र, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड. तो स्कीम का स्ट्रक्चर है ये. एक जगह अगर दिख जाएगा ना, अब स्कीम पढ़ना आसान हो जाएगा. अब जो भी स्कीम में लिखा है वो बेसिकली क्या लिखा है, हर एक चीज पर एक एक लाइन का कंटेंट दिया हुआ है. दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक 2-3 पेजेस का राइट अप, बट इतनी ही स्कीम है. तो मिशन शक्ति इज अ स्कीम. ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ठीक है? अंडर विच मिनिस्ट्री? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इट हैज हाउ मेनी सब स्कीम्स? 2, Sambal and Samarthya. Sambal is 100% funded by central government, and there the funding is shared. Implementing agency is actually hub for empowerment of women. This is the implementing agency, hub for empowerment of women. It will be existing at 3 levels: national level, state level and district level. हमें ये समझने की जरूरत है, मिशन शक्ति में कोई नई स्कीम नहीं लॉन्च करी है. सारी स्कीम्स को एक अम्ब्रेला के अंडर डाला है. वन स्टॉप सेंटर पहले भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले भी था. हाँ, एक नया एडिशन है, दैट इज नारी अदालत. नारी अदालत एक ऑल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है विच हैज बीन एडेड. उज्ज्वला और स्वधार गृह पहले भी थे. वर्किंग विमेन हॉस्टल पहले भी था. हाँ, उन्होंने कोशिश ये करी है कि जो नेशनल क्रेश स्कीम है उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया. अब इन सबको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? Hub for economic empowerment, which is existing at 3 levels: national level, state level and district level. Gender budgeting is a component of hub for empowerment of women. Is that very clear? So as to ensure that whatever are your outcomes, they are satisfying the needs of the women, so that you can achieve the vision of women-led development. फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपके फूड सिक्योरिटी एक्ट में है, आप कल पढ़ोगे, ठीक है? सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेसिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, तो वेज लॉस होता है ना बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये स्कीम आई है.
इज दिस वेरी क्लियर? जिसमें 5,000 रुपीज 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे. मैं सिर्फ समझा रही हूं, कल आप पढ़ोगे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेसिकली इट्स अ स्कीम फॉर द वेज लॉस कॉम्पनसेशन बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी. इट इज गिवन फॉर फर्स्ट 2 लिविंग चिल्ड्रन, प्रोवाइडेड द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड. फर्स्ट चाइल्ड में 5,000 रुपीज दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में, और सेकेंड चाइल्ड जब बर्थ हो गई एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ गर्ल चाइल्ड, तो 6,000 रुपीज दिया जाएगा इन 1 इंस्टॉलमेंट. सो दैट इज द स्कीम ऑल अबाउट. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक. अब जब ये स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, नाउ इट बिकम्स इजियर. अब देखते जाओ. वन स्टॉप सेंटर इज बेसिकली अ स्कीम विच इज फंडेड बाय निर्भया फंड. ये मैं आपको अपलोड करा दूंगी, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, वो मैंने साइड में एडिशंस कर दिए हैं. इज दिस वेरी क्लियर? मेरा मुद्दा है कि आप याद करते चलो. सो वन स्टॉप सेंटर इज बेसिकली अ मैकेनिज्म to provide support and assistance to all the women who are affected by violence, whether in public place or in private place, and it is funded by Nirbhaya Fund. तो 100% असिस्टेंस वहां से आती है. फिर एक 24/7 का टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां पे विमेन को कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी इशू, दैट इज कवर्ड अंडर विमेन हेल्पलाइन नंबर. Then बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी we'll study. That's the next scheme that we have to talk about. Then we have Nari Adalat. So Nari Adalat is an alternative grievance redressal system. इसका कोई legal status नहीं है. इसका main objective है awareness generation, या जो local ग्राम पंचायत लेवल पे वो नहीं होता, कोई grievances हो गए, कोई harassment हो गया, या entitlements rights नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनको address करना. So Nari Adalat basically would be consisting of women who are responsible towards the women cause and are socially respected in the society, but they will not be paid anything for this initiative. Is that clear? But हाँ, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में जो ओवर द टॉप एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंसेस मीट किए जाएंगे, बट उनको पर्सनल कैपेसिटी में कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. देखा जाए तो जो फोकस करने की चीज है वो ये है कि नारी अदालत के और भी ऑब्जेक्टिव हैं. ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है. इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंश्योर दैट वी टेक प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द people so that adequate interventions can be made. It also create awareness among the people with respect to the schemes. So that is also the objective, and whatever services are being provided उसकी effective service delivery हम ensure कर सकें. But इसमें एक point add करना है जो मैंने अलग से add कर भी दिया है. It does not have a legal status. This has to be taken care of. Is it making sense? ठीक है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़ी देर में करते हैं. देन वी हैव शक्ति सदन. तो जो उज्ज्वला होम्स थे ना, जो विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग होते हैं, स्वधार गृह होता है फॉर डेस्टिट्यूट, डिसएडवांटेज, मार्जिनलाइज्ड वुमेन, दोनों को कंबाइन करके हमने क्रिएट करा है शक्ति सदन. वहां पे आपको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड. नॉट ओनली दैट, शक्ति सदन, अच्छा ये जो बॉक्स में दे रखा है, दिस इज पार्ट ऑफ शक्ति सदन ओनली. कि यहां पे क्या होगा, सपोज करो देयर इज सम विमेन हु रीच टू शक्ति सदन, शी इज स्टेइंग देयर, तो उसको इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए एक बैंक अकाउंट खोल के देंगे जिसमें हर महीने 500 रुपए भी डाले जाएंगे. बट शी कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द अकाउंट टिल द टाइम शी इज स्टेइंग इन द home. Once she leaves the home, then she can withdraw the money. Suppose karo women is not alone, she also have kids. So girl child of any age can stay with her, but boy child only up to the age of 12. After that they would be sent to the child care homes under Juvenile Justice Act. Is this very clear? So this is a part of Shakti Sadan. Then you have another initiative, Sakhi Niwas, working women hostel. बहुत बार होता है ना, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, चाहे विमेन मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, जो भी है. इफ शी इज एम्प्लॉयड और शी इज सीकिंग हायर education or any training for skill development, she is allowed to stay in that Sakhi Niwas. Is this very clear? Then one more initiative has been added here, that is Palana. बहुत बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव रोल एंड द मदरहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, विमेन इज नॉट वेरी मोटिवेटेड टू वर्क. तो उन्होंने ये कहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, दिस पालना इनिशिएटिव वुड बी प्रोवाइडेड.
इज दैट वेरी क्लियर? एंड पालना में सिर्फ ये नहीं है, इसे पोषण 2.0 के साथ मर्ज कर दिया है। तो पालना में जो पोषण 2.0 के कंपोनेंट्स हैं, दे आर एडेड। ये एक्चुअली आप देखो तो पोषण 2.0 के कंपोनेंट्स हो गए। आपको डे केयर फैसिलिटी है, अर्ली स्टिम्युलेशन है, अर्ली चाइल्डहुड केयर है, आपको न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल रहा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, हेल्थ चेकअप है और इम्यूनाइजेशन है। एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ इन दैट पालना इनिशिएटिव। इज दैट वेरी क्लियर? अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट है जो सेंट्रल सेक्टर है, दैट इज होम फॉर विडोज। I told you, it can be a sponsored, it can be a sector, or it can be a combination of two. So it's a centrally sponsored scheme with one component which is central sector in nature, that is home for widow. See? Then hub for empowerment of women is the implementing body, national, state and district level पे एग्जिस्ट करती है। इसी का कंपोनेंट है जेंडर बजटिंग। हमने पहले ही कर लिया, शक्ति केंद्र और पुलिस वॉलंटियर दोनों को डिसकंटिन्यू कर दिया। इसी का एक और कंपोनेंट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आई टोल्ड यू, वो स्ट्रक्चर पढ़ लो, स्कीम अपने आप क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप institutions इसमें यूज कर रहे हैं, everything would be geotagged so that proper monitoring can be done. Then there is another mechanism that is program approval board. अच्छा, मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं करा, इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देना। अगर मुझे सोशल ऑडिटिंग करनी है तो जिन्होंने सर्विसेज लिए उन्हीं से पूछ लूंगी आप सर्विसेज से खुश हो या नहीं, तो उनके फीडबैक से पता चल जाएगा कि whether they are satisfied or not and what improvement needs to be done. That is my social auditing. Geo tagging, program approval board. You just need to read it. अगर वो स्ट्रक्चर स्कीम का याद है, उसके बाद ये रीड करके छोड़ सकते हैं। ठीक, ये बस मैंने ऐड कर दिया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो मैं भी आपको बता रही थी, मैंने लिख भी दी कि अगर कहीं और नहीं मिलेगी तो आप यहां से रेफर कर लेना। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? कैन वी प्रोसीड? स्कीम क्लियर है? ठीक। Hello aspirants, ready to master the UPSC prelims exams? Introducing Sandhan, the personalized test series from Vision IAS. Gain access to over 15,000 high-quality questions customized for your personal study needs. Choose between Vision IAS and UPSC previous year questions for your tests. Sharpen your time management with timed assessments under exam conditions. Get tailored feedback and recommendations from targeted improvement. Build your confidence through customized practice sessions. Take control of your preparation. Enroll in the Sandhan Personalized Test Series today. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुरानी स्कीम है। मैंने कैसे पढ़ी थी ये बता देती हूँ, क्योंकि वाकई पुरानी स्कीम है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, नोडल। ठीक है, अदरवाइज जब ये इंट्रोड्यूस हुई तो 3 मिनिस्ट्री, उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई स्कीम है जिसमें 3 मिनिस्ट्रीज इंगेज थी प्रॉपरली। एक ये थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन नोडल मिनिस्ट्री इज ऑलवेज मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेचर क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब तो वैसे भी नहीं भूलोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्यों है, क्योंकि ये संबल का भी तो पार्ट है अंडर मिशन शक्ति, एंड मिशन शक्ति इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। दिस ऑटोमेटिकली बिकम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अगर मुझे इसकी एम की बात करनी है तो लार्जली द एम वाज to bring about social change along with behavioral change so as to improve the status of girl child. So overall, Beti Bachao Beti Padhao aim is social and behavioral change to overall improve the status of the girl child. अब इसको याद करने का तरीका बताती हूं, इसके objectives. They are simple, 4-fold objectives है. First, prevent sex selective abortion. Second, ensure survival
and protection. Third, education and participation, and overall protection of rights of girl child. ऑब्जेक्टिव्स ये हैं. इस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च हुई थी, इसीलिए 3 मिनिस्ट्रीज थी. डिड यू गेट द पॉइंट? इसीलिए 3 मिनिस्ट्रीज थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स 3-fold थे. और ओवरऑल क्या कंक्लूजन था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है. जो हमने कंटेंट में दे रखा है वो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो अचीव करने, कि हर साल 1% एनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ जाए, ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाए. दे आर द स्पेसिफिक टारगेट्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. बट अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो लार्जली दिस वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक. एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे फोकस ही बिहेवियरल चेंज है. तो हम कोई कैश ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम कोई एसेट क्रिएशन नहीं कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में बदलाव आए, सो दैट स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड कैन बी इंप्रूव्ड. ओवरऑल जब ये कॉन्टेक्स्ट समझना, ये स्कीम आई इसलिए थी क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज वेरी डिसमल. द नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड एज कंपेयर टू बॉय चाइल्ड वाज वेरी less. So in order to arrest that decline in child sex ratio at birth, the scheme was introduced. बेटी बचाओ और फिर बेटी को पढ़ाओ. ठीक. So improvement in sex ratio at birth, these are the targets. Then institutional deliveries या तो 95% में maintain करो या उससे इंप्रूव कर दो, या फिर एंटीनेटल केयर, इसके लिए भी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. तो जो एंटीनेटल केयर का रजिस्ट्रेशन है विमेन का इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट ऑल्सो हैज टू इंक्रीज बाय 1% एवरी ईयर. सो दीज आर नथिंग बट द targets. Then dropout of the girl child, especially from secondary and higher education, also needs to be reduced. Overall menstrual hygiene management has to be there. Child marriages needs to be properly eradicated, because within child marriage the major victim is a girl child. So that also situation needs to be addressed. Most importantly, capacity building करने की जरूरत है. Sensitization of the frontline workers is required in order to bring about behavioral change. अब मुद्दा आता है बिहेवियरल चेंज करें कैसे. तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करना. ठीक है. गुड्डा गुड्डी बोर्ड डिस्प्ले करना, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड बोर्न विसवी नंबर ऑफ बॉय चाइल्ड ये डिस्प्ले किए जाएंगे. ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर टेकन जस्ट टू ब्रिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंज. सिमिलरली एक्टिविटीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होगा. जब ये शुरू में स्कीम आई थी तो पायलट बेसिस पे थी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में. अब दिस स्कीम इज एप्लीकेबल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छी कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड प्रिपेयर किया जाएगा. उसके लिए डेटा कहां से मिलेगा? मिशन शक्ति से, बिकॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ पार्ट ऑफ मिशन शक्ति. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है. इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? एक कमिटी हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो ओवरसी करेगी कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? स्कीम क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. Integrated nutrition program. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसके जो बेनिफिशियरी हैं दे विल बी चिल्ड्रन, adolescent girls, pregnant women, lactating mother. क्लियर है? अगर मुझे इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स चाहिए हो तो मैं याद करने का तरीका बता रही हूं. लेट अस अज्यूम अगर न्यूट्रिशन होगा तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, ह्यूमन कैपिटल बनेगा.
तो आई वॉन्ट टू इंश्योर देयर इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। लेकिन ह्यूमन कैपिटल होने के लिए मुझे एड्रेस करने पड़ेंगे challenges which is associated with malnutrition। और malnutrition से associated challenges को address करने के लिए पहली चीज I need to create awareness and good eating habits। और अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो मुझे उसे दूर करना पड़ेगा विद की इंटरवेंशन। ऑब्जेक्टिव्स तैयार। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है। देखो, एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं, रटना तो कतई नहीं, क्योंकि पता है क्या है, यहां दर्द होने लगता है। आई डोंट नो, जो प्रीलिम्स इस बार लिख रहे हैं वो समझेंगे कि अगर बहुत ज्यादा चीजों को रटने की कोशिश करो ना तो एक्चुअली दर्द होने लगता है थोड़ी देर बाद, और फिर इरिटेशन होती है, फिर लगता है छोड़ दो सब कुछ। तो उससे बेस्ट है थोड़ा सा ना, वो नहीं होता, अपनी समझ से। जैसे मेरे को अगर याद करना है तो मैंने इस तरह से याद करने की कोशिश करी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो आप भी अपनी समझ से याद करने की कोशिश करना, फिर जब ऑप्शंस दिखेंगे तो आ जाएगा आंसर। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक। अब क्या हुआ, पोषण अभियान तो पहले भी था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाज ऑलरेडी देयर, बट उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने सोचा एक नई स्कीम लेकर आते हैं, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, और उसमें उन्होंने वर्टिकल्स क्रिएट कर दिए। पहला उन्होंने कहा हम सप्लीमेंट न्यूट्रिशन देंगे, और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन 6 months to 6 years. Then it will be given to pregnant women, lactating mother. It will also be provided to the adolescent girls in the age 14 to 18, especially in the northeastern region. Second thing that we added here कि हम सक्षम आंगनवाड़ी क्रिएट करेंगे। जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी हैं उनको अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी क्रिएट करेंगे। थर्ड थिंग दैट दे सेड, अर्ली चाइल्डहुड केयर। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक 0 to 3 या 6 months to 3 ले लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं लेस देन 3, और दूसरा है 3 to 6। तो यहां हम अर्ली स्टिम्युलेशन देंगे, जो 3 साल से कम के बच्चे हैं, और जो 3 से 6 साल के हैं उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देंगे। एंड फाइनली पोषण अभियान। So these are nothing but the verticals which have been created so as to ensure better implementation of National Nutrition Mission, which today is known as Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Is that very clear? ठीक। अब एक चीज है जो आपको याद रखना है, जो पूछा जा सकता है, पिलर ऑफ पोषण 2.0, ये दे रखा है कंटेंट में। ये कह रहे हैं पोषण 2.0, जो ये पूरा मिशन पोषण 2.0 है, इट इज वर्किंग ऑन C2G। ऐसे याद कर लो, C2G। तो C2G क्या है? कन्वर्जेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस। और जो पोषण है, जो पहले पोषण अभियान था, उससे हम लेंगे इनोवेशन एंड आउटरीच। सो पोषण 2.0 कौन से पिलर्स पे वर्क कर रहा है? C2G। सो C2G इज कन्वर्जेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस। Along with, there are 2 pillars which we have borrowed from Poshan Abhiyan, which again is a part of Poshan 2.0. That is nothing but innovation and outreach. Is that clear? इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो देखेंगे लोकल लेवल पे न्यूट्रिशन नॉर्म्स आर बीइंग मतलब अपहेल्ड और नॉट। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मेंशन कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल पोषण वाटिकास वगैरह। तो इतना हो गया, तो कैन वी मूव टू द स्कीम? ठीक। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक ओवरऑल आइडिया लग जाए, फिर तो अब हम डायरेक्टली स्कीम पे आ जाओ। ये सारी चीजें वी हैव टॉक्ड अबाउट, ये सब हो गया। हाँ, पोषण वाटिकास का कॉन्सेप्ट है
ठीक. देन रजिस्ट्रेशन, जो भी बेनिफिशियरीज हैं दे हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड इन द नियर बाय आंगनवाड़ी सेंटर. तो देखा जाए ना कि जो एकदम वो हम किसको कहते हैं बफर पॉइंट, या जो एकदम कहते हैं ना कोर पॉइंट इज आंगनवाड़ी, क्योंकि हर चीज इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू वाया आंगनवाड़ी. एंड हु इज गोइंग टू मॉनिटर और इंप्लीमेंट वेदर इट इज बीइंग डन प्रॉपर्ली और नॉट? इट इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. देयर इज प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिटिंग. देन देयर इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव पोषण ट्रैकर ऐप. ऐसे क्या होता था ना, हर जगह जाके आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग वगैरह रिकॉर्ड्स रजिस्टर में मेंटेन करना बहुत टैक्सिंग हो जाता था. अब पोषण ट्रैकर ऐप है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए भी आसान है, और एक अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होगी वेदर लास्ट माइल डिलीवरी न्यूट्रिशन की हो भी रही है या नहीं हो रही है. सो दैट इज नथिंग बट IT इनेबल्ड इनिशिएटिव पोषण ट्रैकर ऐप. ठीक. देन पोषण भी, पढ़ाई भी. I told you ना, early childhood care and education, and that's a part of which policy of government? National Education Policy. So to give effect to National Education Policy, early childhood care and education has been incorporated under Poshan 2.0. So basically objective है कि पढ़ें भी, मतलब पढ़ाई भी और पोषण भी. तो उसमें इंश्योर किया जाएगा जो आंगनवाड़ीज हैं उसमें जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, सो दैट यू कैन गिव द रिक्विजिट एजुकेशन एट द अर्ली चाइल्डहुड लेवल, स्पेशली इन द मदर टंग. जो भी पेडागोगी आप यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड. सो इट इज अ वेरी टारगेटेड इंटरवेंशन विच वुड बी मेड. अदर देन दैट there are two more initiatives, राष्ट्रीय पोषण माह एंड राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा. वो बेसिकली मंथ सेलिब्रेट करने के लिए. तो जैसे पोषण माह है सितंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही पोषण पखवाड़ा है वो मार्च के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली दीज आर द इनिशिएटिव्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन. इज दिस वेरी क्लियर? ठीक. देन किशोरी हेल्थ कार्ड, इसको देखो ये कैसे यूज कर रहे हैं. हमने कहा ना स्कीम में एक बेनिफिशियरी अडोलेसेंट गर्ल्स भी हैं. अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए पहले एक स्कीम हुआ करती थी सबला, उसका नाम चेंज कर दिया, फिर आ गया स्कीम फॉर अडोलेसेंट गर्ल्स. अब उसमें क्या होता है कि हमें ये मेंटेन करना है कि वेदर दे आर प्रॉपर न्यूट्रिशन और नॉट. तो मैल नरिशमेंट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ना, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट. तो उसके लिए आपको क्या क्या जानने की जरूरत है? हाइट कितनी है, वेट कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, वही है ये, पढ़ लो. सो किशोरी हेल्थ कार्ड्स will be prepared under the scheme for adolescent girls, which will be keeping a record of weight, height and body mass index, and they will make sure that awareness is being created कि जो scheme है for adolescent girls उसके अंदर क्या initiatives लिए जा रहे हैं. तो adolescent girls में proper awareness create की जाएगी कि आपको iron, folic supplements, immunization, deworming क्या लेने की जरूरत है. Is it very clear for everyone? ठीक है. ओवरऑल अगर आपको जानना हो कि पोषण 2.0 का क्या पर्पस है, सो इसका फोकस ये देख, ये मैंने लिख भी दिया है पर आप इसको पढ़ भी लेना. एक सेकेंड, आई थिंक सो मैंने लिखा है, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. पोषण 2.0 का अल्टीमेट फोकस है मैटरनल न्यूट्रिशन पे, इन्फेंट और चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स पे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर SAM एंड MAM, severe acute malnourishment and moderate acute malnourishment. और acute malnourishment का मतलब होता है wasting, ठीक है, और stunting होता है chronic malnourishment. Stunting समझते हैं height with respect to age, और wasting क्या है? weight with respect to height. तो severe acute malnourishment and moderate acute malnourishment. तो wellness ensure करना है using आयुष practices. तो this is overall focus of Poshan 2.0. तो सारी बात का ये सार है कि this needs to be focused upon. Is that very clear? एक initiative और लिया है, वो बस देख लेते हैं. This is भारतीय पोषण कृषि कोष. सो इट इज अ वेब पोर्टल, ये फूड एटलस का भी काम कर सकता है. सो डेटा इन्फॉर्म्ड एग्रो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे. पहली बात तो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फूड है जो नेचुरली ग्रो करता है और कैसे ग्रो करना चाहिए, तो पूरी इंफॉर्मेशन वुड बी प्रोवाइडेड देयर. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? दैट इज, मैंने कहा ना, कुछ स्टार बना के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और इसको बस एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आएगा भी तो भी मार्क कर लोगे. ये बहुत पुरानी स्कीम है, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है. इसमें 2-3 चीजें याद करने की जरूरत है.
सो सिंस मैनी ऑफ यू आर नॉट कैरिंग द डॉक्यूमेंट, तो हम इसलिए बोर्ड पे लिख कर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट स्कीम नहीं है जिसको लिखा जाए, तो और छोटी सी है तो इसको डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि स्किल इंडिया प्रोग्राम है। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री में आता है ये ऑब्वियसली क्लियर हो गया, ठीक है, तो इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. That means it would be funded and implemented both under the aegis of central government. Third important aspect, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको स्किल करना, रीस्किल करना और अपस्किल करना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है. इसका फाइनेंस कौन देखेगा? एक इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री का, वो इसका फाइनेंस देखेगा और जो ओवरऑल मॉनिटरिंग है वो मिशन डायरेक्टोरेट करेगा. तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर याद करना है तो उसका अगेन एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम है, ठीक है, तो हम चाहते हैं पहली चीज कि हमारा जो यूथ है वो रिसोर्स बन जाए. दूसरी चीज हम चाहते हैं कि जो स्किल्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएं. तीसरी चीज है जो आपकी स्किल है वो रेलेवेंट होनी चाहिए और उनमें क्वालिटी होनी चाहिए. और चौथी चीज है कि मार्केट प्लेस पे आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो इंप्रूव हो जाए. तो चाहे डेमोग्राफिक डिविडेंड का आंसर हो, चाहे स्किल इंडिया का ऑब्जेक्टिव हो, इट रिमेन्स द सेम. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक आइडियाज हैं, इसको थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में समझ के करो, आप आसानी से मार्क कर सकते हो. ठीक, क्या क्या? हाँ, वो मॉनिटरिंग, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, कि ओवरऑल मॉनिटर करना. हाँ हाँ, सो द पॉइंट हियर इज, अब नेक्स्ट चीज है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या स्कीम्स आती हैं. देखो, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन जब क्वेश्चन बना था तब बहुत आसान था. मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ. अंडर स्किल इंडिया मिशन पहली चीज है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. अगर ये स्किल इंडिया का पार्ट है तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है? स्किल इंडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाया था जिसका पहला स्टेटमेंट था, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. डिड यू गेट माई पॉइंट? और एक्चुअली जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें 3 ऑप्शन में ऑप्शन 1 दे रखा था और ऑप्शन 1 गलत था, तो बाकी 2 ऑप्शंस नहीं भी आते हैं तो पता था कि राइट आंसर क्या है. लेकिन ये पिछले साल से पहले की अगर क्लास होती तो मैं ये लॉजिक दे देती. पिछले साल धोखा हो गया हमारे साथ, सो अब हम ये लॉजिक नहीं देंगे. बट यू नेवर नो कब समय बदल जाए. बट एनीवे, ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि थोड़ा सा ना रिलेशंस बनाते हुए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आसान हो जाएगा. बट एनीवे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके अलावा है जन शिक्षण संस्थान. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये बता देती हूँ. ब्रॉड स्कीम आती है तो डिटेल में पढ़ते हैं, जो उसके अंदर की स्कीम्स होती है ना उसको हर बार डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव याद कर लो केवल. उसका रीजन है वो मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं. विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन. तो यहां पर क्या है, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी याद रख लोगे ना तो 2 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे. ठीक है, तो जन शिक्षण संस्थान का ऑब्जेक्टिव है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है नॉन लिटरेट को, नियो लिटरेट को या स्कूल ड्रॉप आउट्स को इन रूरल एरियाज. दूसरी है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम. तो ये जो स्कीम है इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है. जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है. इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं उन इंडस्ट्रीज को जो अप्रेंटिसशिप को इंकरेज करते हैं. ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अप्रेंटिस समझते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो यहां ऑब्जेक्टिव है कि ऑन द जॉब एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग देंगे. दूसरा, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है अपस्किलिंग की वो आपको प्रोवाइड कराएंगे. और यहां पे हम इंकरेज किसको कर रहे हैं? माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को. और इसमें बेनिफिशियरीज कौन आएंगे? वो अप्रेंटिसेस एवरीवन एक्सेप्ट ग्रेजुएट्स, टेक्नीशियन एंड वोकेशनल टेक्नीशियन. ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया कि बाय चांस अगर कुछ पूछ लें तो वन शुड हैव एन आइडिया. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. इसको भी यहीं से पढ़ते हुए चलते, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं समझाते हुए चलूंगी.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अगर माइनॉरिटी अफेयर्स की है, अच्छा ये याद होना चाहिए क्योंकि ये नाम से बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि इट कम्स अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स। जन विकास कार्यक्रम, पहले इसका नाम था मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अब क्या है, नाम बदल दिया गया है। सो इट हैज बीन रीवैम्प्ड, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड टू बी यूज्ड। ठीक, कुछ नहीं करना, कुछ माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज होते हैं जहां पे डेवलपमेंट डेफिसिट होता है, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि जन का विकास करना है। तो सपोज करो इट इज अप्लाइड टू एवरी डिस्ट्रिक्ट नाउ, ठीक, तो इस डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया हमने आइडेंटिफाई करा जहां पे माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन है वो 25% से ज्यादा है, तो यहां पर हम ये स्कीम अप्लाई। अब स्कीम में हम क्या करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हम बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि हम इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, जो इस एरिया में डेवलपमेंट का डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, सब सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हो, कोई स्कूल हो, पॉलीटेक्निक हो, एवरीथिंग वुड बी क्रिएटेड हियर। इज इट मेकिंग सेंस? बस यही स्कीम है। The purpose is socio-economic development of development deficit areas. It's a centrally sponsored scheme. It has been of late revamped. 2022-23 में revamp करी, उसके बाद ये हर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होती है। नहीं तो जब शुरू में आई थी तब इन्होंने सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स चूज करे थे जहां पे ये अप्लाई होती थी। ठीक है, ओवरऑल व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? अगेन वी टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्ट करना, ओवरऑल बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना, रिड्यूस करना इम्बैलेंसेस और डेवलपमेंट डेफिसिट्स को। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो यहां लिखा हुआ है, इट वॉज रिवैम्प्ड and basically it is the state can propose the infrastructure projects in the area where concentration of minority population is more than 25%. And what are minorities? It has been defined by the Minority Act. Is it clear? ठीक है, अभी न्यूज में इसलिए था because there was a Jain institution which has been created. तो basically it is part of जन विकास कार्यक्रम। ठीक है, सो ओवरऑल अप्रोच ये रहेगी कि डिमांड आएगी कि ये एरिया में डेवलपमेंट डेफिसिट है एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस एरिया को हमने आइडेंटिफाई करा, 25% से ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, कम्युनिटी एसेट क्रिएट कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस एसेट को सिर्फ माइनॉरिटी यूज करती है। There are other people also who are living in that area can use the इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर फाइनली कोशिश ये रहेगी कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, एटलीस्ट 80% ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स शुड बी फ्रॉम द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, सोलर एनर्जी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा है कि आपको इंश्योर करना है कि 33 से 40% जो प्रोजेक्ट हैं वो विमेन और गर्ल चाइल्ड की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो स्पेशली उनके लिए एसेट जनरेशन करना है। दूसरा है इट इज कन्वर्जेंस विथ विश्वकर्मा स्कीम, दैट इज पीएम विकास। Basically, you are creating infrastructure which is going to provide the facilities for the development of art, craft, skill and heritage. Vishwakarma scheme आप कल पढ़ोगे. Is this clear for everyone? ठीक. And finally, geotagging of the assets which have been created so that better monitoring can be ensured. Is it making sense for everyone? इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने का नहीं है. This is the basic minimum which can be taken care. You need to understand few things. There are some schemes which can be extremely important. There can be some schemes जिसमें एक overall idea होना चाहिए. तो यहाँ पर एक overall idea होना चाहिए. ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट होती है? पहली बात तो न्यूज में थी, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बाय नेम इसके बारे में और कुछ पता नहीं चल रहा है। और तीसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि ये कैसे आप आइडेंटिफाई क्राइटेरियाज को करते हो। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके हिसाब से ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ नहीं, पीएम विकास के साथ इसका टाई अप है कि अगर हम उन चीजों का भी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी क्रिएट करेंगे जो हमको चाहिए आर्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए। दैट इज द पॉइंट। ठीक, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाँ हाँ हाँ, यार एज सच कोई ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं है
क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ, अब बनेगा तो तब की तब देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि स्कीम्स में डुप्लीकेशन नहीं होता, वही तो रीजन है कि कोई भी स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। अब ऐसे तुम बोलो हृदय स्कीम है, अमृत स्कीम है, स्मार्ट सिटी मिशन है, सभी तो डुप्लीकेशन पे वर्क कर रही है। ठीक है, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक, चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं क्लास में भी कहती हूँ कि जब तक कोई और स्कीम ना आ जाए आयुष्मान भारत रहेगा। तो आयुष्मान भारत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये हमेशा पढ़ते रहना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, centrally sponsored scheme. It has two major component, health and wellness center, जिसको एक नया नाम मिल गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलेंगे, ठीक है। एंड दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओवरऑल जो आयुष्मान भारत का आइडिया था, दैट केम फ्रॉम नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. The objective was to ensure universal health coverage. The specific objective was to promote good health, मतलब promotive, preventive and ambulatory care at 3 levels: primary, secondary and tertiary. तो प्राइमरी के लिए हमारे पास क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हमने क्या लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये एक ऐसी स्कीम है विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो। ठीक, सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने ये टारगेट रखा था ना, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी क्रिएटेड। और पर्पस क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देना। कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है, पहले जब लॉन्च किया था तो फोकस था MCH एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब और डायमेंशंस भी ऐड करती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको हम और एक्सपैंड कर देंगे। तो ओरल केयर, डेंटल केयर, ENT, मेंटल हेल्थ केयर, जो इमरजेंसी या ट्रॉमा सिचुएशन होती है, एवरीथिंग वुड नाउ बी कवर्ड अंडर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। Is it making sense for everyone? ठीक है। Then on the other hand, we have प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये सबको पता है इंश्योरेंस कवर है, ठीक है, 5 लाख रुपीस का। एंड पहले क्या था? 10 करोड़ फैमिलीज को टारगेट करना था, अब क्या है? 12 crore people have to be targeted. So that ambit has been increased. Second, it says it is paperless and cashless. Third thing, it talks about जो भी existing scheme है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, it has been subsumed. बेनिफिशियरी कैसे चूज करते हैं? देखो, चूज तो कैसे भी कर ले रहे हैं, लेकिन आइडियली कैसे कर रहे हैं, मतलब लिखा क्या है? Socio-economic caste census is the criteria. Is it available only in public hospitals or private hospitals also? Both. Is there any criteria? Yes, they have to be impaneled. Impaneled healthcare provider can only provide you Ayushman Bharat services. Is that very clear? ठीक है। 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर वुड बी प्रोवाइडेड। कैशलेस होगा, टोटली पेपरलेस होगा, और इनफैक्ट कोई फ्रॉड नहीं हो इसलिए एंटी फ्रॉड सेल्स भी होंगे, विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी होगी, और कोई डुप्लीकेशन नहीं हो जाए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर नहीं हो जाए। तो हर बेनिफिशियरी का आधार एसोसिएटेड KYC होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिंगरप्रिंट्स होंगे, आइरिस स्कैन होगा और फेस ऑथेंटिकेशन होगा। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, तो ऑन पेपर द स्कीम इज वेरी गुड, बट कभी कभी हो जाता है, वो रिपोर्ट आ जाती है फिर। बट चलो, वो सारे हंसी मजाक के चर्चे हम करेंगे मेंस के पहले, तब मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो बातें
नहीं बनाई नहीं थी, बताई थी, तो इसमें क्या झोल झपाटा है, बट एनीवे, सो आयुष्मान भारत, सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड 12 करोड़ फैमिलीज, 2 पार्ट्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. होलिस्टिकली आपको प्रमोटिव, प्रिवेंटिव एंड एम्बुलेटरी केयर एट 3 लेवल्स विल बी प्रोवाइडेड. नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने इसको रेफर किया है. 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड. कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर करेंगे. एक बात याद रखना, ये पॉइंट्स याद कर लो, मैं बोलती नहीं हूं बट ये पॉइंट्स कर लेते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर से क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर से मतलब है कि एक तो सर्विस डिलीवरी एक्सपैंड कर दी गई है, दूसरा है कि हम पार्टनरशिप करेंगे फॉर नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन, रोबस्ट आईटी सिस्टम होगा, टेलीमेडिसिन या रेफरल का इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा. ओवरऑल जो आपका ह्यूमन रिसोर्स वर्कफोर्स है उसमें मल्टी स्किलिंग की जाएगी, एक्सपैंड करेंगे, और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो बेस्ड ऑन दैट आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, एंड ओवरऑल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड हेल्थ प्रमोशन. सो ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर. सो जस्ट रीड इट वंस दैट इन केस यू गेट अ क्वेश्चन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं. ये सेम है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है. अच्छा, 3 तरह से कर सकते हैं हम. इसमें हम डायरेक्ट प्रीमियम पे कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, या हम पेमेंट कर सकते हैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर को, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये स्टेट पे डिपेंड करेगा. हेल्थ किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का. तो ये हेल्थ स्टेट पे डिपेंड करेगा विच मॉडल दे आर गोइंग टू अप्लाई. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ठीक है, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी आपका स्टेट लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे है. ठीक, 4 मोड ऑफ वेरिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन हाँ, ये एक आइडिया होना चाहिए कि हम चाहते हैं नो वन शुड बी लेफ्ट आउट. सो इन ऑर्डर टू ट्रांसेंड द ज्योग्राफिकल बैरियर, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग एवरीवन, हमने आयुष्मान भव कैंपेन लॉन्च करा है, जिसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट्स हैं आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा. इसके क्या ऑब्जेक्टिव है मैंने एक एक लाइन में लिख दिया. ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. आपके द्वार 3.0 का मतलब है इनेबल करना है कि हर सिटीजन अपना आयुष्मान कार्ड खुद क्रिएट कर ले. ठीक है, आयुष्मान मेला जो हम क्रिएट करेंगे वो प्रायोरिटाइज करेगा डिलीवरी ऑफ सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, और जो आयुष्मान सभा होगा उसका है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज. तो बस इतना ध्यान रखना, जो यहां लिखा है ना, दिस इज फॉर आयुष्मान मेला. एक एक लाइन में कि बाय चांस अगर मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो एक लाइन पढ़ने में क्या जाता है, एक लाइन बस पढ़ के चले जाना. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, ये बस एक्स्ट्रा दे रखा है. अच्छा, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसको पढ़ेंगे कैसे? अगेन, इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर दोनों के कंपोनेंट्स हैं. इसको ना कहानी की तरह याद कर लेते हैं. ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. अब स्कीम का नाम बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है. ठीक है, तो हम एक ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं दैट वी वांट टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन टैकल बोथ द करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो एंड द प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू इमर्ज इन द फ्यूचर. बैक ऑफ द माइंड में कोविड को रख लेते हैं. ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड. अब सपोज करो मुझे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि ग्रास रूट लेवल पर जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रोबस्ट बनाना, जिससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर हो जाएगा. तो ये तो हो गया ग्रास रूट लेवल. थोड़ा सा ऊपर उठे तो फिर जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रोबस्ट बनाना, जिससे कि जो करंट या फ्यूचर में कोई पैंडेमिक या डिजास्टर आए तो वो उनको एड्रेस कर लें. तीसरी चीज है कि जैसे कोविड हुआ या कोई भी और इंफेक्शियस डिजीज, उसमें प्रॉपर रिसर्च करें, जिससे कि वी आर केपेबल टू अप्लाई व्हाट इज नोन एज वन हेल्थ अप्रोच. वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है, हमें समझने की जरूरत है, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इन्वायरमेंट, दे आर नॉट वाटर टाइट, कंपार्टमेंटलाइज्ड. वी ऑल बिलोंग टू दिस वन स्पेस, एंड इफ वी डू नॉट डेवलप द अप्रोच ऑफ वन हेल्थ, द चांसेस ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शंस वुड बी वेरी हाई, बिकॉज इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर इंक्रीजिंग. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, और एक आइडिया ये करते हैं कि जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जिससे कि आप इन्वेस्टिगेट करो, आप डिटेक्ट करो कि कौन सी डिजीजेस आगे
आ सकती हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करें, और अगर हो गई तो कैसे कॉम्बैट करें। कहानी समझ आई? यही ऑब्जेक्टिव्स है। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? तो समझ के याद करना हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो बहुत जहर कंपोनेंट है। इस स्कीम में दो चीजें हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक सेंट्रल सेक्टर। और उसके बाद ना इन्होंने सिर्फ पॉइंट्स में मेंशन कर रखा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या क्या आता है और सेंट्रल सेक्टर में क्या क्या आता है। मैंने सोचा कि कोई शॉर्टकट निकालूं जिससे आपको याद हो सके, तो मुझे ही नहीं याद हो रहा, तो आपको क्या बोलूं याद करने के लिए। तो यहां पर मैं यही बोलूंगी कि जो मैंने ये मार्क कर रखा है वो एक बार पढ़ लेना कि इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या कंपोनेंट है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपको रूरल एरियाज में डेवलप करने हैं, अर्बन सेंटर्स में डेवलप करने हैं, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट हो गया, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज हो गई, ये सारी लेबोरेटरीज वगैरह डेवलप करनी है। ये सेंट्रल सेक्टर में आता है स्पॉन्सर्ड में, और ये सेंट्रल सेक्टर में आता है। ये भैया अपने रिस्क पे खुद पढ़ लेना, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि इसको मैं कैसे समझा के पढ़ाऊं, क्योंकि ये ऐसे ही है, दिस इज व्हाट इट इज। तो या तो एक एक लाइन बस ऐसे देख लेना हाउ इट इज सपोज टू बी डन, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी टेक्निक टू लर्न दिस। इज इट वेरी क्लियर? कैन वी प्रोसीड? मैंने बहुत सोचा कि कुछ तो होगा, कुछ तो बता पाऊंगी मैं, कुछ 4 पॉइंट से खुद ही कर लो। सो नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है। सेंट्रल सेक्टर में ऐसा नहीं होता, मोस्टली कोर होता है, डिपेंड करता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। तो यहां का जो पूरा इसका जो सार है वो यही है, माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं अभी समझा दूंगी। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पहली चीज है, किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंट्रल सेक्टर है। तो फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इज बोथ अंडर द एजीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब देखो इसका मतलब क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वो बेसिकली कह रहा है एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसकी वजह से हम डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। तो इंटीग्रेटेड मतलब एक जगह सारा हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। उसके लिए हमने क्या किया है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है आभा और आभा ऐप, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। ये एक 14 डिजिट का नंबर होगा, आप वॉलंटरली खुद क्रिएट कर सकते हो, और फिर आप अपनी मर्जी से अगर आपका मन हो तो आप उस नंबर पे जो आपने आईडी क्रिएट करी है आप अपने खुद के हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कर सकते हो, एंड इट विल बी यूज्ड एंड शेयर्ड ओनली आफ्टर योर कंसेंट, सो दैट वुड बी टेकन केयर। दूसरी चीज है, एक हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज होती हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन हुआ। कैसे? मैंने जितने भी पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उस एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, और एक यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा जहां पे अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई कंसल्टेशन करना है, सो दैट वुड बी फैसिलिटेटेड। सो कैन वी से एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म इज गेटिंग क्रिएटेड। अब इन्होंने यहां पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, सपोज करो ये ज्योग्राफिकल एरिया मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब मेरा काम है जितने भी यहां पे स्मॉल हेल्थ और मीडियम हेल्थ प्रोवाइडर हैं उनको मुझे इंकरेज करना है कि वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल्ड बन जाए, जिससे कि वो अपने पेशेंट्स को डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। तो दैट इज नथिंग बट माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट, एंड दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है, अब जल्दी से देखो। टू सपोर्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज 4 बेसिक कंपोनेंट्स। ये तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, यही था। 4 बेसिक कंपोनेंट्स, आभा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रजिस्ट्री, एंड यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। देन वी हैव माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। अच्छा, माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के लिए वो नहीं पढ़ना, माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के लिए ये पढ़ना। Ayushman Bharat Digital Mission microsites are geographically defined regions in which targeted outreach initiatives would be conducted, where we will encourage small and medium scale healthcare providers, private level pay, to become Ayushman Bharat Digital Mission enabled so that they can provide digital health services to their patients. Is it making sense for everyone? ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अरे ये तो बचपन किसकी,
MG नरेगा. So, क्या बताएं अब इस स्कीम के बारे में. MG नरेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कोर ऑफ द कोर स्कीम. लेबर कॉस्ट 100% is given by the center, whereas the material cost is shared 75% by the center and 25% by the state. करता क्या है, एक सप्लीमेंट्री लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जहां पे वो 100 days ऑफ गारंटीड वर्क देता है, प्रोवाइडेड यू वॉलंटियर टू डू मैनुअल unskilled work. The objective of this scheme is to treat manual unskilled work as a legal right. तो 100 days का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, एटलीस्ट टू वन अडल्ट इन एवरी हाउस होल्ड. ठीक है. इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, प्रोवाइडेड ओनली दोज डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है वहां अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इट इज अ स्कीम फॉर द रूरल एरियाज. ठीक है. एक अच्छी चीज है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की डिमांड जनरेट करी, आप ग्राम पंचायत के पास गए, आपने रजिस्टर किया, आपने कहा मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, 15 दिन के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1/3 बेनिफिशियरीज इसमें विमेन होने चाहिए. तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 50 डेज का एडिशनल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोवाइडेड आप उस जगह में रहते हो जहां पे वो ड्रॉट या डिजास्टर प्रोन एरियाज होते हैं, या फिर आप ट्राइबल हाउस होल्ड को बिलोंग करते हो. ठीक है. सो तब आपको 50 डेज का एडिशनल मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि एडिशनल नहीं मिल सकता, मिल सकता है, पर उसका पेमेंट अगर आप और कहीं एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो उसका पेमेंट स्टेट को करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट 100% सेंटर दे रहा है, एंड विच इज ओनली फॉर 100 डेज. अगर उसके बियॉन्ड कोई स्टेट जॉब देना चाहता है, काम देना चाहता है, तो उसका पेमेंट फिर स्टेट को बेयर करना पड़ेगा. इज दैट वेरी क्लियर? जितने भी वेज सीकर है, ऐसा है, हम इंश्योर करेंगे उनके पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, उनको मेडिकल एड वगैरह, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह मिले. लेकिन सपोज करो कोई वर्किंग विमेन है जिसका बच्चा 5 साल से छोटा है, तो चाइल्ड केयर प्रोविजन इज ऑल्सो देयर. जो भी वेजेस हैं इक्वली डिवाइडेड होंगे, लेकिन हमको इंश्योर करना है कि वेज मटेरियल रेशियो जो है वो कभी भी 60:40 क्रॉस नहीं करे. मतलब मोर फोकस हैज टू बी देयर ऑन द वेजेस. तो ओवरऑल मैं पूछ रही हूं, मतलब एमजी नरेगा कुछ समझ आया क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके? एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, ओवरऑल सोशल इंक्लूजन कर रहा है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, और क्या कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एसेट्स क्रिएट कर रहा है, और क्या कर रहा है? इसमें सोशल ऑडिटिंग का भी प्रोविजन है. तो सोशल ऑडिटिंग का पर्पस क्या होता है? गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी. और क्योंकि ग्राम पंचायत का मेजर रोल है, आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हो. दीज आर नथिंग बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमजी नरेगा. हो गया तैयार. ठीक है. What are the aims of MG नरेगा? आप ही ने बताइए. So is this very clear for everyone? ये सारी है. जो भी एसेट्स क्रिएट होंगे वो जियो टैग हो जाएंगे. आजकल तो जियो टैगिंग इज नॉर्मल. द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओ इसको चेंज करना था, आई होप आई हैव एडेड. हाँ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके पास स्कीम का डॉक्यूमेंट है, इसमें डेटा अपडेट कर लो, और जिसके पास नहीं है वो अभी समझ लेते हैं. National Social Assistance Program basically is a part of Ministry of Rural Development, but the catch is it is applicable both in urban and rural areas. So it comes under Ministry of Rural Development, but the catch is it is applicable both on urban and rural area. National Social Assistance Program को लाया ही गया था to give effect to Article 41 of your Constitution. Do we remember Article 41 of the Constitution? Wow.
हाँ, सो बेसिकली पब्लिक असिस्टेंस को प्रोवाइड कराना, ठीक है, एंड टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. सो टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 41 ऑफ योर DPSP, दिस हैज कम इनटू प्लेस. नाउ इट हैज 5 कंपोनेंट्स. 5 कंपोनेंट्स में 3 पेंशन स्कीम्स हैं और 2 नॉन पेंशन स्कीम्स हैं. अब यहां पे मुझे क्या चेंज कराना है? जो 3 पेंशन स्कीम्स हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन एंड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, क्राइटेरिया चेंज कर देना. मैंने लिख दिया है, बट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्राइटेरिया चेंज कर ले. जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है तो 60 to 80 ईयर्स इंटाइटल टू 200 रुपीज और 80 साल से जो ऊपर हैं उनको 500. सिमिलरली अगर मैं विडो पेंशन की बात करूं तो इसमें क्राइटेरिया चेंज हो गया है, ये रिवाइज हो गई है गाइडलाइंस. तो अगर 40 से 79 हैं तो 300 रुपए मिलेंगे और 80 से ऊपर है तो 500 मिलेंगे. वैसे ही अगर मैं डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम की बात करूं तो 18 से 79 है तो 300 रुपए मिलेंगे, प्रोवाइडेड 80% डिसेबिलिटी है. उससे कम है तो नहीं मिलेगा. और जो डॉर्फ होते हैं उनको भी इसमें पेंशन दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? 80 से ऊपर है तो 500. 2 जो नॉन पेंशन कंपोनेंट्स हैं वो है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम. अन्नपूर्णा पहले कर लेते हैं. ऊपर था ना ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो जो ओल्ड एज एलिजिबल हैं, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं बट वो ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कवर्ड नहीं है, तो उनको लाया जाएगा अन्नपूर्णा स्कीम में, जहां 10 kg ऑफ फूड ग्रेन वुड बी प्रोवाइडेड पर मंथ. ठीक है. लेकिन जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है इसको फिर चेंज हो गया है. अब 20,000 रुपए लमसम द पेमेंट वुड बी मेड इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द मेन ब्रेड विनर, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज इन द एज ब्रैकेट 18 to 60. तो ये जो अपडेशन हुआ है ये प्लीज ऐड कर लेना. ठीक है. तो दीज आर द गाइडलाइंस विच हैव अपडेटेड द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस. तो ये किस मिनिस्ट्री में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, कोर ऑफ द कोर है. इसमें बेनिफिशियरी कैसे चूज करते हैं? सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू. इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, 3 पेंशन है, 2 नॉन पेंशन है, और दोनों के एरियाज हमने अपडेट कर दिए हैं. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक. और तो कुछ नहीं है इसमें, बाकी तो हो गया. ठीक है. और कैच अर्बन एंड रूरल एरियाज. ठीक. अच्छा, ये चीज जिनके पास नहीं है वो एक बार प्लीज जल्दी से अपडेट कर लो, या ये मैं अपलोड कर दूंगी तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ. ठीक है. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है. हम ऑल वेदर कनेक्टेड रोड प्रोवाइड कराएंगे. बेसिकली जो एलिजिबल हैबिटेशन है रूरल एरियाज में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ठीक. इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको यहां से पहले पढ़ेंगे. ये डिफरेंट फेजेस में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. हमने कुछ हैबिटेशंस आइडेंटिफाई करे, एलिजिबल हैबिटेशंस जो आपस में कनेक्टेड नहीं थे. तो फिर हमने कहा कि हम रोड कनेक्ट करेंगे एंड दैट वुड बी द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. तो पहली बार जब हमने रोड कनेक्टिविटी की बात करी तो हमारे लिए जो एलिजिबल हैबिटेशंस थे वो ये थे जिसमें कम से कम प्लेन एरियाज में 500 से ऊपर की पॉपुलेशन हो, और जो डेजर्ट, ट्राइबल, हिल एरियाज हैं उसमें पॉपुलेशन 250 से ऊपर होनी चाहिए. ये पहला क्राइटेरिया हमने रखा था. फिर क्या हुआ कि जब सेकंड फेज आया तब तक 50,000 किलोमीटर रोड बन चुकी थी. हमने कहा था इसको फर्दर अपग्रेड करेंगे. फिर हमने रोड कंस्ट्रक्शन की बात करी थी उन एरियाज में जहां दे आर अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग
एक्सट्रीमिज्म। और फाइनली जो इसका भी करंट फेज चल रहा है उसमें जो 1,25,000 किलोमीटर की रोड है, हम बात कर रहे हैं इसको कंसोलिडेट करने की। तो हम ये कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग हैबिटेशंस हैं हमको उनको अपग्रेड करके कनेक्ट करवाना है जो ग्राम एग्रीकल्चरल मार्केट्स होते हैं, जिससे क्या है एक्सेसिबिलिटी टू द मार्केट प्लेस एंड ओवरऑल जो इनकम इंक्रीमेंट है दैट कैन बी इंश्योर्ड। सो नाउ द लास्ट स्टेज हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं रूरल रोड नेटवर्क की, एंड वी वांट द हैबिटेशंस टू बी कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये इस फेज में इंप्लीमेंट हो रहा है। लार्जली अगर हम बात करें जो रोड क्राइटेरिया है फंड शेयरिंग का, तो वो 60:40 है एंड 90:10 है, कोर स्कीम का पार्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि यहां पे रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो भाई पॉपुलेशन कितनी है, मार्केट, एजुकेशन फैसिलिटी, दीज आर द क्राइटेरिया। कोई स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ, तो वहां पे एक इंडियन रोड कांग्रेस का एक मैनुअल है विच एक्चुअली विल आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड्स विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ये बहुत बेसिक चीजें। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराना होता है। सपोज करो रोड आज बिल्ड हो गई, ठीक है, और आज कंप्लीट वर्क हो गया, अगले 5 साल तक जिस कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बिल्ड करी है उसी का काम होता है रोड को मेंटेन करना। और वंस वो 5 ईयर का पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द रोड आफ्टर पोस्ट 5 years ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो पहले 5 साल हैं वो ड्यूटी किसकी होती है, कॉन्ट्रैक्टर की। अब क्या होता था, सपोज करो, मैं आपको बहुत बेसिक भाषा में समझा रही हूं, कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बिल्ड कर ली, तो जब आप रोड बिल्ड करते हो तो एक बड़ा सा बिल बनता है, आप बिल रेस करते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं, बात खत्म। लेकिन जब आपको रोड को मेंटेन करना है कहीं, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत छोटे छोटे बिल्स जनरेट होते हैं। आप रोज बिल रेस करोगे, बहुत बार क्लियर नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर जनरेट होगा। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इन सबको आईटी इनेबल्ड कर देते हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, ई गवर्नेंस सोल्यूशन दिया, जो कि बनाया था नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। उसका नाम था ई मार्ग। अब उसमें क्या होता है, जो ऑफिशियल है, आपने बिल वगैरह रेस किया तो वो ये देखते हैं कि वेदर यू हैव डन दैट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग वर्क प्रॉपरली और नॉट। तो अब सब कुछ आपका डिजिटली इनेबल्ड हो गया, ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया, टाइमली कंप्लीशन होने लग गए, और जो एक तरह का नेक्सस नहीं एग्जिस्ट करता था कॉन्ट्रैक्टर्स और डिपार्टमेंट के बीच में, वो करप्शन भी खत्म हो गया, एफिशिएंसी भी बढ़ गई, रोड की जो कहते हैं ना क्वालिटी है वो इंप्रूव होने लग गई, क्योंकि उसका क्राइटेरिया था। अब क्या होता था, आपने जी बिल रेस कर दिया कि इतना हमारा मॉनिटरिंग में लग गया, तो ऐसे बिल क्लियर नहीं होगा, पहले फोटो खींची जाएगी, वहां पर देखा जाएगा कि वो जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं 14 पैरामीटर्स वो मीट हो रहे हैं कि नहीं, फिर आपको 100 में से स्कोर दिया जाएगा। अगर 80 से ऊपर का स्कोर है तो जो आपने मैनेजमेंट किया उसका बिल क्लियर होगा, अगर 80 से कम है तो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, और 80 से भी ऊपर कितना स्कोर है उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। सो बेसिकली टू इंश्योर गुड गवर्नेंस एंड टू इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द रोड इज मेंटेन्ड, द इनिशिएटिव हैज बीन टेकन। ये बिल्कुल बेसिक भाषा में मैंने समझाया, अब इंग्लिश में देख लो। State shall provide for the adequate funds for maintenance of road post 5-year construction. Then you have electronic maintenance of the rural road under this, that is known as eMark. So eMark is a GIS-based enterprise e-governance solution which will be assisting the contractors, banks, general public. End-to-end solution है and which will ensure restricted role-based access via internet. तो इंग्लिश में ये है, हिंदी में जो हमने बताया। Is that very clear for everyone कि what is the purpose of this? This is अच्छा, where did I get the information? There is a very good YouTube पे एक National Informatics Center की एक वीडियो थी, so I got access to that video. In this they have explained entirely how this concept of eMark works. ठीक है, so the credibility to the information is there. So did we understand? ठीक, then National Rural Infrastructure Development Agency, ये पूरा क्वालिटी अश्योरेंस वुड बी इंश्योर्ड। हाँ, एक चीज है जो हम कहते हैं ना कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो पता होने चाहिए, तो इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपको क्या याद रखना है, ई मार्ग, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, मेरी सड़क ऐप, विच इज बेसिकली सिटीजन फीडबैक एंड द ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। तीसरा आपको याद करना है कि एक ऑनलाइन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है सो दैट देयर इज फास्टर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी एग्जिस्ट करती है विच विल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एंटायर प्रोविजन। इज दैट क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए।
अब क्या है? चलो, ये लास्ट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पहली देखते हैं। पहली स्कीम है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। तो बेसिकली वी वांट टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब इसको भी आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा उल्टा करके पढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, उल्टा करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। हैव वी हर्ड अबाउट स्मार्ट सिटी मिशन? स्मार्ट सिटीज क्रिएट करनी है, ठीक है। सो स्मार्ट सिटी मिशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड, बेसिक है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पहली चीज, ठीक। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दूसरी चीज। थर्ड चीज है, इसका ऑब्जेक्टिव है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अब कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मुझे स्मार्ट सिटी बनानी है तो मैं कह सकती हूं उसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए। तो ये क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है टू क्रिएट अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, एंड तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। So these are the core objectives of Smart City Mission. Who will be implementing Smart City Mission? Special Purpose Vehicle. एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जाएगा जो कि लिस्ट किया जाएगा एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। वो सारे काम करेगा, वो अप्रेस करेगा, अप्रूव करेगा, फंड रिलीज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, मॉनिटर करेगा, इवैल्यूएट करेगा। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड जितना काम है वो कौन करेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल में जो स्टेट है और यूएलबीज हैं, दे विल एक्ट एज अ प्रमोटर, और उनकी इक्विटी शेयर होल्डिंग होगी 50:50। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्राइवेट फाइनेंस नहीं आ सकता। इफ देयर इज अ प्राइवेट फाइनेंस विच वांट्स टू एंटर दिस अरेंजमेंट, तो इसमें क्या चेंज नहीं होगा कि जो स्टेट और यूएलबी है उसकी शेयरिंग आपस में 50-50 ही रहेगी, और जो ओवरऑल मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है विच हैज टू बी विद द स्टेट एंड यूएलबी। तो एसपीवी पे कभी प्राइवेट का कंट्रोल नहीं जाएगा, लेकिन आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज कर सकते हो। इज दैट वेरी क्लियर? अब मुद्दा यह है कि स्मार्ट सिटी को इंप्लीमेंट कैसे करने की सोची। तो उन्होंने सोचा कि 4 चीजें करते हैं। एक होता है रेट्रोफिटिंग, एक होता है रीडेवलपमेंट, एक होता है ग्रीन फील्ड, और चौथा होता है कि पैन इंडियन बेसिस पे आप स्मार्ट सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये बिल्डिंग बनी हुई है, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं करेंगे, वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चेंजेस कर देंगे। तो हमने उसको रेट्रोफिट कर दिया। फिर हम यहां पर आए, यहां पे बिल्डिंग बनी हुई थी, इसको पूरा डिमोलिश करके दोबारा से यहीं पर नई बिल्डिंग बनाई। तीसरा क्या है, ग्रीन फील्ड। यहां ऑलरेडी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ स्मार्ट सिटी वाज सपोज्ड टू बी इंप्लीमेंटेड। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? स्मार्ट सिटी का एक कंपोनेंट है योर फर्स्ट स्कीम, दैट इज सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी अर्बन सिटी बनाना चाहते हैं जो कि क्लाइमेट सेंसिटिव हो। So that is my objective, that is the objective of the scheme. वैसे तो हम सबका ही होना चाहिए, but the point here is clear, ठीक? तो अब इस point of view से समझना, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट। तो उस चीज को दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रख के वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट कि हम क्या कर रहे हैं, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स कोऑर्डिनेट करेगा। इसकी जो फंडिंग है इस सिटीज प्रोजेक्ट की, ये फ्रांस और जर्मनी से आई, और टेक्निकल असिस्टेंस जो है ये यूरोपियन यूनियन ने प्रोवाइड करा। अब अगर मुझे समझना है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको भी सिंपल भाषा में समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमको एक क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग करनी है। जो भी हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो इस तरह से बनाएं दैट दे आर नॉट हार्मिंग योर क्लाइमेट। सो देयर हैज टू बी क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग, पहली चीज। दूसरी चीज है, हवा में थोड़ी ना क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग हो जाएगी, फिर हमको इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट हम उन प्रोजेक्ट्स में करेंगे जो कि क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स हो।
कैसे करेंगे? सपोज करो आप कंपनीज हो, आपने प्रोजेक्ट के लिए बिड किया, तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा। जो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी होंगे उनमें आपस में कंपटीशन होगा, एंड देन द प्रोजेक्ट वुड बी गिवन टू यू एंड देन इट वुड बी इंप्लीमेंटेड। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑलरेडी गिवन, कि इट इज बेसिकली डीलिंग विद प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेयर देयर इज रीयूज, refurbishing, recycling, leasing of the existing products for as long period as possible. तो basically आप resource wastage को कम कर रहे हो. Is it making sense for everyone? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट इंकरेज कर रहे हैं किसमें? अर्बन क्लाइमेट एक्शन में. कैसे इंकरेज कर रहे हैं? बाय कॉम्पिटिटिवली प्रोजेक्ट्स ऑन सर्कुलर इकोनॉमी. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बिल्ड कर सकते हो, आप टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हो. दिस इज हाउ. या फिर आप पार्टनरशिप को फोस्टर कर सकते हो. दीज आर नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक. Then the project would be existing, or there would be 3 components. जितनी भी स्मार्ट सिटी हैं वो एलिजिबल हैं स्कीम के लिए. 3 कंपोनेंट्स हैं. एक आपका सिटी लेवल है, एक आपका स्टेट लेवल है, और एक आपका नेशनल लेवल है. सिटी लेवल बेसिक है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है उन प्रोजेक्ट्स में जो कि बेसिकली क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स है, लेकिन फोकस किस पे ज्यादा किया जाएगा? वेस्ट मैनेजमेंट पे. सो दैट इज गोइंग टू बी द की आइडिया. अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो सिर्फ ये पॉइंट्स याद कर लो. हम क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग को इंकरेज करना चाहते हैं स्टेट लेवल पे. उसके लिए हम क्लाइमेट सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारे म्युनिसिपल के फंक्शनरीज हैं उन सबको ट्रेन कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दैट, या स्टेट क्लाइमेट सेंटर्स क्रिएट कर सकते हैं. तो जो आप इनिशिएटिव लोगे दैट बिकम्स द इंटरवेंशन एट द स्टेट लेवल. और नेशनल लेवल पे हम इंकरेज करेंगे क्लाइमेट ओरिएंटेड गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज. तो बेसिकली वी आर फर्दरिंग क्लाइमेट गवर्नेंस इन अर्बन इंडिया. सो इट इज अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? अब आसानी से याद हो जाएगा. अब जब पढ़ोगे जब भी तो आसानी से याद हो जाएगा. ठीक. देन स्मार्ट सिटी हमने बात कर ली, बट एक बार देख लेते हैं. टू डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. इंप्लीमेंटिंग बॉडी स्पेशल पर्पस व्हीकल. इसके ऑब्जेक्टिव्स: कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन. 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये याद कर लेना. अच्छे हैं, ये वैसे भी काम आएंगे. पहली चीज है कम्युनिटी एट द कोर. हम जो भी स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. हम कहेंगे मैक्सिमम फ्रॉम द मिनिमम. मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके हमें मैक्सिमाइज करना है आउटकम को. सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेट करना है, इनोवेट करना है और सस्टेन करना है. दैट इज अनदर. टेक्नोलॉजी को मीन्स की तरह ट्रीट करेंगे, एंड की तरह नहीं. Because technology is not the main concern. Main concern is the community. Sustainable living. Technology is a means. Convergence approach use करेंगे. Different sectoral convergence करेंगे. And most importantly, आपस में competition encourage कर सकते हैं. तो वो कहते हैं ना, competitive federalism, cooperative federalism, that can be encouraged. Core infrastructures we have already discussed. Then, smart city project को implement कैसे करते हैं? Retrofitting, redevelopment, greenfield and स्मार्ट सोल्यूशन का एप्लीकेशन. ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, उसका यही आंसर था. बट एनीवे, लेट्स प्रोसीड. स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या क्राइटेरिया है? बस इसमें एक पॉइंट रह गया था कि जो सेंटर है वो आपको एक टाइड ग्रांट देती है कहने का, और वो एक सेपरेट ग्रांट की तरह रखा जाता है. मतलब कि आप वो ग्रांट उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो जिसके लिए सेंटर ने आपको दिया है. ठीक है, सेंटर ने आपको पैसा दिया, उतना ही पैसा स्टेट को भी डालना पड़ेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी. लेकिन सपोज करो आपको और फंड्स की जरूरत है, तो आप इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स यूज करके फंड्स रेस कर सकते हो, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह इशू करके. ठीक है, ये देख सकते हैं. हमने कहा ना एक स्टार बना के एक वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर. तो बेसिकली दिस हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज, और उसका पर्पस यही है कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सिटीजन्स को. तो चाहे वो क्राइम ओरिएंटेड हो जाए कि आपको हेल्पिंग यू टू ओवरकम दोज इंसिडेंसेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, हेल्थ, एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन.
लाइवलीहुड मिशन एज द नेम सजेस्ट, पर्पस क्या होगा? लाइवलीहुड देना। और लाइवलीहुड क्यों देंगे? ओवरऑल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो यही एम है, टू रिड्यूस poverty and vulnerability of urban poor people by generating livelihood options for them. अब livelihood options कैसे देते हैं ये देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंकरेज कर सकते हैं, हम वेज एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कुछ ऐसे अर्बन होमलेस पीपल होते हैं जिनको हम शेल्टर दे सकते हैं, या जो अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक और स्कीम है ना, स्वानिधि स्कीम. So that would be talking next. So the point here is कि urban livelihood, the objective is to reduce the poverty and vulnerability of the urban poor people. How you are doing it? Self-employment, wage employment, या फिर 2 more points are added, providing shelter to the homeless people or livelihood concerns of the urban street vendors. For example, PM Swanidhi schemes. ठीक है, वो ये कहता है कि जो अर्बन पुअर हाउसहोल्ड है, एटलीस्ट एक मेंबर शुड बिकम द पार्ट ऑफ SHG नेटवर्क. एंड SHG में क्या है, यूजुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप समझते हैं, 10 से 20 लोगों का SHG बनाएंगे, लेकिन सपोज करो ट्राइबल एरियाज हैं तो 10 से कम का भी बना सकते हैं, या अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 5 लोगों का भी SHG बना सकते हैं. अब क्या है, सपोज करो 2 तरह के एंटरप्राइजेस आप डेवलप कर रहे हो, एक जो ग्रुप लेड एंटरप्राइज है, एक जो सेल्फ रन एंटरप्राइज है. तो किस तरह का सपोर्ट दिया जा सकता है? तो सपोज करो अगर वो इंडिविजुअल लेड एंटरप्राइजेस है तो एक सीलिंग लगा दी जाती है कि इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको दिया जाएगा, या अगर ग्रुप लेड है तो मिनिमम उसमें 2 मेंबर्स होने चाहिए और पर मेंबर आपको 2 लाख मिलेंगे या 10 लाख, जो भी उसमें कम है. दूसरा वो ये कहता है कि अगर SHG आपने फॉर्म किया और आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी. सो इंटरेस्ट सब्सिडी अबव 7% आपको दी जाएगी, और अगर वो विमेन लेड सब्सिडी है तो एडिशनल 3% इंटरेस्ट सब्सिडी वुड बी गिवन टू यू. Is that very clear? So we are basically encouraging, what we are encouraging, livelihood opportunity in the urban areas. Then support to the street vendors, we have already mentioned that. Then overall monitoring and evaluation के लिए एक state mission management unit है और city mission management unit है. Then अभी ये news में था, इसलिए था क्योंकि UNDP ने एक पार्टनरशिप करी है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. क्यों? इंकरेज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चॉइसेस, इन्फॉर्म्ड एंटरप्रेन्योरशिप चॉइसेस अमंग विमेन. सो ओवरऑल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. इज दैट क्लियर? तो वो ये चाहते हैं अगर किसी विमेन ने स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, सो द इनिशिएटिव हैज बीन टेकन. 3 ईयर का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये 3 साल बाद भी एक्सटेंड किया जा सकता है. इज इट मेकिंग सेंस? ठीक. Then another is this Nipun. So Nipun is National Initiative for Promotion of Upskilling of Nirman Workers. तो ये exactly क्या है? The basic motive is to train approximately 1 lakh construction workers through proper skilling and upskilling. हमने कहा था ना, skilled wage employment, gainful self employment, shelters for homeless, या फिर urban street vendors. पैसा पोर्टल बेसिकली जो इंटरेस्ट सबवेंशन होता है ना, उसको मैनेज करना, ट्रैक करना, प्रोसेस करना, तो उसके लिए एक पोर्टल क्रिएट कर दिया. ठीक. देन कम्स स्वानिधि स्कीम. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. अभी तक हमने कितनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम पढ़ी, कुछ याद है? स्किल इंडिया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. फिर एक हमने मिशन शक्ति करी जिसमें सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट था. एक हमने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किया जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर दोनों कंपोनेंट थे. देन वी हैव PM स्वानिधि, दैट इज सेंट्रल सेक्टर. बेसिकली आइडिया क्या है, कोविड के टाइम पे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे दे वर अफेक्टेड. So in order to encourage street vendors to resume their activities which was disrupted because of COVID, this initiative, the microcredit scheme, has been launched. The objective is collateral free working capital loan would be provided. For example, 10,000 rupees for the tenure of 1 year. If you make timely payment, then interest subsidy of 7% would be given and it will be quarterly paid.
Is this clear? And if you make digital transactions, then cashback मतलब incentivize करेंगे जिससे आप timely payment भी करो और आप digital transactions भी करो. Suppose करो वो जो 10,000 आपने लोन लिया वो आपने timely repay कर दिया, तो next time you are eligible for a higher loan amount. Let us say 20,000 और in the third tranche you are eligible for 50,000 का loan. अब criteria आता है कि हम street vendors को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब हु वुड बी आर बेनिफिशियरी. तो या तो आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट हो, या फिर लेट अस से सर्टिफिकेट नहीं है बट जो वहां का सर्वे कंडक्ट किया गया उसमें आपका नाम आया, या सपोज करो सर्वे में भी आपका नाम नहीं आया लेकिन यूएलबी या टाउन वेंडिंग कमिटी ने आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया. बट चौथी कंडीशन की सपोज करो आप उस अर्बन एरिया के नहीं हो लेकिन जो नियर बाय एरियाज हैं आप उसके हो, लेकिन वो अर्बन लोकल बॉडी के लिमिट में ही आता है और फिर अर्बन लोकल बॉडी ने आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया, इवन देन यू आर एलिजिबल. इज इट मेकिंग सेंस? इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सिडबी इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी. अब वही है, हमने सारी वही बातें करी हैं क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं. बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरियाज क्या हैं, स्वानिधि स्कीम में क्या होगा, हाँ कौन से स्टेट्स वगैरह एलिजिबल है, ये वो स्टेट्स एलिजिबल है. एक एक्ट है ना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, देयर इज एन एक्ट विच वाज पास्ड इन 2014 और वो मैंने PT 365 में पढ़ाया है, पढ़ लेना क्योंकि 10 साल हुए हैं. तो हो सकता है स्वानिधि पे भी सवाल आ जाए और वो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पे भी सवाल आ जाए क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं. ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज ये अब जो दे रहे एग्जाम अगर टाइम हो तो ध्यान देना, नहीं तो छोड़ो ये सब. अब और जो अगले साल दे रहे हो या बाद में देंगे वो ध्यान रखना, 10, 20, 25 साल इंपॉर्टेंट होते हैं. बट एनीवे, सो अच्छा एक और चीज है क्रेडिट गारंटी कवर. अब सपोज करो ये मार्केट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, 10-10 हजार रुपए दिए और ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सब स्ट्रीट वेंडर्स तो सबको 10-10 हजार रुपए दे दिए. अब जितने ये रुपए हमने बांटे समझते हैं कि हमारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया. अब इसमें कुछ तो होंगे जो फॉल्टर कर जाएंगे, तो इसकी वजह से हो सकता है जो मार्केट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसको लॉस लग जाए. तो ये जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड बनाया है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये उनको रीइंबर्स करेगा. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है. देन स्वानिधि से समृद्धि, ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना स्ट्रीट वेंडर्स को, और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इसका इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है. इज इट मेक सेंस? ठीक है. स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, कुछ बातें याद रखनी है. पहली चीज ऑब्जेक्टिव क्या है. जब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन पहली बार आया था तो टारगेट था 100% ODF, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री, एंड वी हैव टू पुट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस सो एज टू इंश्योर कि 100% अप्रोक्सीमेटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए. अब जब ये 2.0 आया है तो हमारी उम्मीदें और आशाएं थोड़ी बढ़ी हैं. अब हम चाहते हैं गार्बेज फ्री सिटी बनाना. तो मुद्दा यह है गार्बेज फ्री सिटी से आपका क्या तात्पर्य है. तो पहली चीज है कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन करिए वेस्ट का, 100% सोर्स सेग्रीगेशन कर दीजिए वेस्ट का. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अनट्रीटेड वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होना चाहिए. और ये जितनी भी लेगेसी डंप साइट्स हैं जो दूर से लगता है अरे कितने ऊंचे पहाड़ हैं, पास जाओ तो पता चलता है कूड़े का ढेर है, तो वो जो लेगेसी है डंप साइट्स की उनका बायो रेमिडिएशन करना है. और जितना भी कूड़ा है वो इधर उधर नहीं फेंकना, वो साइंटिफिकली जो लैंडफिल्स बनाई गई हैं वहां पे ही जाके उनको डिस्चार्ज करना है. और सिंगल यूज प्लास्टिक अप्रोक्सीमेटली फेज्ड आउट मैनर में एकदम बैन करना है. ये क्राइटेरिया है गार्बेज फ्री सिटी क्रिएट करने का. अब अरमान क्या है. अरमान ये है कि कम से कम
गार्बेज फ्री सिटी का जो क्राइटेरिया होता है ये एक सा नहीं है, इसमें 7 स्टार रेटिंग होती है, 1 स्टार से लेकर 7 स्टार। वो कहते हैं कि हर स्टैट्यूटरी टाउन कम से कम 3 स्टार रेटिंग तो लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि ये तो करना पड़ेगा, कि 3 स्टार रेटिंग लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये कतई ना पूछिएगा कि मैम ये 3 स्टार रेटिंग का क्राइटेरिया क्या है, ऐसा नहीं है कि जानने की कोशिश नहीं करी, बट वो इतना लंबा क्राइटेरिया था कि क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत अफसोस होगा उसे पढ़ने का। सो द पॉइंट हियर इज कि जो पैरामीटर्स है बस इतना याद रखो कि 7 स्टार रेटिंग होती है जिसमें मिनिमम 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा एक तो ओडीएफ तो कंप्लीटली डिक्लेयर हो चुका है, अब हमें ओडीएफ प्लस करना है। ODF प्लस का मतलब होता है कि no one is defecating in open, no one is urinating in open, and all the public and community toilets are maintained and functional. पानी होना चाहिए उसमें। So the point here is that is ODF plus. दूसरा क्राइटेरिया है ODF डबल प्लस होना चाहिए, मतलब वो जो टॉयलेट्स है उसमें प्रॉपर फीकल स्लज मैनेजमेंट, प्रॉपर सेप्टेज मैनेजमेंट होना चाहिए। और लास्टली वाटर प्लस। वाटर प्लस का मतलब होता है कि कोई भी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, चाहे हाउस होल्ड से हो, इंडस्ट्रीज से हो, ड्रेन से हो, नाला से हो, वो जब तक एक मतलब ऑप्टिमम लेवल तक ट्रीट नहीं हो जाता उसे आप एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करेंगे। सो दीज आर द क्राइटेरियाज। इज इट मेकिंग सेंस? गार्बेज फ्री सिटी, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। गार्बेज फ्री सिटी का क्राइटेरिया, फीकल स्लज, वाटर वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, सिंगल यूज प्लास्टिक को मिनिमाइज करना, बायो रेमिडिएशन ऑफ डंप साइट्स करना और इफेक्टिव मैनेजमेंट वेस्ट का करना, ठीक है। ओवरऑल मिनिमम 1 स्टार होना चाहिए, तब आपको फंडिंग दी जाएगी। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 स्टार रेटिंग अचीव करना, ODF प्लस, ODF डबल प्लस, एटलीस्ट 50% स्टैट्यूटरी टाउन को वाटर प्लस डिक्लेयर करना। ये क्या है? ये सारे क्राइटेरियाज लिखे हैं, ये भी आना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सब कुछ करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण, ये PT 365 में अभी अपडेटेड क्लास में कवर किया था। एनुअल सर्वे होता है, ये बेसिकली कैप्चर करता है क्लेanलीनेस, हाइजीन एट अ वेरी लार्जर लेवल। इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, स्टार रेटिंग कैसी चल रही है, सिटीजन फीडबैक क्या है, और इसमें जो पार्टनर होते हैं वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। 10 मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन, इट हैज बीन लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ मिशन लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। It is a campaign which is initiated by Central Pollution Control Board. Basically, क्यों? To promote sustainable and environmentally friendly lifestyle. Is it clear for everyone? ठीक, चलो। प्रधानमंत्री आवास, that's the last scheme from my side. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। So eligible families के लिए all weather हाउसेस हमें क्रिएट करने हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका एक कंपोनेंट है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम विच इज सेंट्रल सेक्टर। और इसमें हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं दे डू नॉट हैव अ पक्का हाउस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब बेनिफिशियरीज में इनमें 3 ग्रुप्स होते हैं, एक EWS कैटेगरी, एक लो इनकम ग्रुप, एक मिडिल इनकम ग्रुप। क्राइटेरिया देख लेना, EWS when annual income is 3 lakh or less, low income group up till 6 lakhs, 3 to 6, and then you have middle income group that is 6 to 18 lakh। अगर EWS कैटेगरी है तो चारों वर्टिकल्स, इसके 4 वर्टिकल्स हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन सपोज करो आप लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप हो तो आप सिर्फ एक वर्टिकल के लिए एलिजिबल हो, दैट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। तो अब मुद्दा आता है कि वो 4 वर्टिकल्स हैं कौन से? These are the 4 verticals. पहला है इन सीटू रिहैबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। दूसरा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। तीसरा है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, और चौथा है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो केवल अगर EWS कैटेगरी में हो तो ये चारों वर्टिकल्स के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर ओनली एलिजिबल फॉर 1 वर्टिकल, दैट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ होम्स जो हम क्रिएट करेंगे, अगेन स्कीम इज वेरी गुड ऑन पेपर। जो हम क्वालिटी ऑफ होम्स उसमें हम इंश्योर करेंगे बेसिक सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सैनिटेशन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, हाइजीन, ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज, सेप्टिक मैनेजमेंट, ये सब कुछ हो। दूसरा है हम इंश्योर करेंगे कि वो फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इन सब से स्ट्रक्चर
प्रूफ हो, और फिर हम इंश्योर करेंगे जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो जो क्राइटेरियाज हैं दे आर बीइंग मेट। तो ये सारी चीजें हमने अपनी स्कीम में दे रखी हैं, ठीक है। फंडिंग मैकेनिज्म यही है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो 40% है, और प्राइवेट कंट्रीब्यूशन जो होगा इंक्लूडिंग द बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द 60%। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक सिस्टम है। विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है कि अगर घर में कोई भी अडल्ट फीमेल है तो उसी के नाम पे घर होगा, अगर कोई नहीं है तो मेल के नाम पे घर होगा। सो दैट इज एन एफर्ट। और इसका जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का कंपोनेंट है वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड और हुडको दैट वुड बी इंप्लीमेंटिंग इट। देन जो इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है दैट इज लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। अब हम ये सोच रहे हैं जो ब्रिक मॉर्टर सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, एक तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसमें कॉस्ट भी जाती है, और सस्टेनेबल नहीं होता, ड्यूरेबल नहीं होता, बहुत बार हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो। तो उन्होंने ये कहा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंकरेज करें जो हमको कॉस्ट इफेक्टिव, हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल हाउसिंग क्रिएट करके दे फॉर masses। उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट विच वुड बी इंप्लीमेंटेड एट 6 places। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? दैट्स ऑल। एंड देयर इज दिस आवास पोर्टल। अगेन क्रेडिट लिंक का मतलब ही होता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का, कि आप अपने सब्सिडीज को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, वट एवर द सब्सिडी सबवेंशन वुड बी प्रोवाइडेड, उसके लिए ये पोर्टल क्रिएट करा गया है। एंड दिस हैज ऑल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर उमंग। So Umang is the initiative which has been taken by Ministry of Electronic and Information Technology. Is it clear for everyone? Okay. So these were the schemes which I had to cover because they are from my area. I will be uploading this. There is a small document which I have created, जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था PYQ वाला, उसके आगे मैंने एक small document create करा है question answer का from the schemes which I have discussed. तो बस घर जाके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें 10-15 क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, तो थोड़ा एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस साल अगर प्री दे रहे हो तो अब उठाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, घर जाके मैक्सिमम 1 घंटा देकर क्विक रिविजन कर लेना, जिससे कि जो समझा है वो रजिस्टर हो जाए। और एक बार जून में एक दिन कोई भी शाम का वक्त हो, कुछ 1-8 घंटा बस स्कीम्स को रिवाइज कर लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना। इज दिस वेरी क्लियर? मोटिव समझ आया, आइडिया समझ आया पढ़ना कैसे है, ठीक है। कुछ गुस्सा, ठीक है, चलो। सो ऑन दिस नोट वील एंड द लेक्चर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू कैन टेक 5 minutes break or let us say 10 minutes break, and then we'll start the other part of it. Another faculty would come and they would take the remaining schemes. Chalo. And tomorrow also we have a class at 1 o'clock. So there would be, I think, Ram Sudhir sir who would be taking the remaining schemes. ठीक है, चलो।